Hello and good morning, my dear students. There is no summary of the last class because we are going to start the new semester, that is semester number 4. In that, we are going to study the concepts of sound waves, acoustics, and laser. What we are going to study in this paper 1. In the paper 1, we are studying sound waves, acoustics and laser. ये पढ़ने वाले हैं. In that sound waves, acoustic and laser, we are going to start with the superposition of two simple harmonic motions, that is unit 1. Okay, unit 1 contains superposition of two simple harmonic oscillation. उसके साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट. सो मुझे ये बताना है कि हम या आप या सभी सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस पढ़े हैं कब 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में, राइट. सो उस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में हम ये भी पढ़े हैं व्हाट आर द बीट्स, है ना, एंड एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स. वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो फिर भी हम ये यूनिट स्टार्ट करते समय उसी के साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं या हमारा सिलेबस उसी के साथ स्टार्ट हो रहा है. ओके, तो उसको हम पहले लर्न करते हैं और उसके बाद के पोर्शन में हम स्टडी करेंगे लिसाजस फिगर्स. लिसाजस फिगर्स आर नथिंग बट द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ओनली, बट they are of different case. What they are of, that we are going to see in the further class, right. Then so we are going to start with the first beats. What are the beats? Beats is a phenomena. Okay, beats is a phenomena which occurs when two sound waves of slightly different frequency superpose with the each other. Okay, तो क्या बोलेंगे उसे? टू वेव्स, दैट वेव्स अगर है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से ऑफ सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग अलोंग द सेम लाइन, यानी पैरेलल है. when they superpose with each other, then the phenomena of beats occurs. When two waves of nearly same frequency overlaps with each other or superpose with each other, then they are going to form resultant wave. Okay, and that resultant waves or resultant intensity at that point varies periodically with the time, consisting of alternate maxima and minima. Okay, that maxima is called what? Waxing, and the minima is called what beta? Waning. maxima क्या कहेगा? waxing, और मिनिमा को क्या कहिएगा? मिनिमा. देखिए, मिनिमम ऑफ साउंड इज कॉल्ड वीनिंग. वन वैक्सिंग एंड नेक्स्ट वेनिंग टुगेदर फॉर्म बीट. एक मैक्सिमम साउंड फॉर एग्जांपल हम ऐसे ले रहे, और एक मिनिमम साउंड इज गोइंग टू फॉर्म वन बीट. ये टोटल हुआ एक बीट, राइट बेटा. द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वेनिंग और वैक्सिंग इज कॉल्ड पीरियड ऑफ बीट. मतलब एक ये क्या है? वैक्सिंग है, और ये क्या है? वेन है, राइट. फिर वैक्स, फिर वेन, राइट. सो दो वैक्स के बीच का टाइम इंटरवल मतलब पीरियड हुआ, राइट. या दो वेन्स के बीच का टाइम इंटरवल मतलब टाइम पीरियड हुआ. ओके, देन fourth one is
if you are hearing 5 beats per second, then the frequency of beats is 5, and that is equals to the difference of the different sounds frequencies. तो अगर बीट्स की फ्रीक्वेंसी क्या है 5 है, इसका मतलब क्या है, दो जो ओवरलैपिंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस है उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है. ओके, द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स. पर सेकेंड कितने बीट्स हम सुन रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स. ओके, देन next is what we are going to see, the analytical treatment of formation of beats. तो उसके लिए हम कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर 2 साउंड वेव्स, एक y1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा y2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट. वन इज हैविंग फ्रीक्वेंसी n1, another is having frequency n2, in which n1 is greater than n2, and amplitude of both the waves is small a, and which is same for both. Okay, so here you can able to see the simple harmonic motion 1, y1 is equals to a sine 2 pi n1 into t, and y2 is equals to a sine 2 pi n2 into t. When the two waves arrives at a point, same point पे दोनों एक बार में पहुँचते हैं, then resultant displacement at that instant t is given by superposition principle, that gives you what, y is equals to y1 plus y2. ओके, तो y1 हमारे पास है, y2 हमारे पास है, तो ये एक्सप्रेशन मिला. इसके बाद हमें पता है, क्या पता है बेटा, a sin x प्लस b sin y इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है बेटा, एक मिनट फिर से मैं रिपीट करता हूँ. ए साइन एक्स प्लस ए साइन वाई, इससे पहले बी लिखा था, दैट इज़ नॉट द केस हियर. ओके, सो हमारे यहाँ पे केस क्या है, एम्पलीट्यूड दोनों जगह पे सेम है. तो हमें क्या मिलता है, सिंप्लीफाइड या इक्वल टू क्या है वो, 2 टाइम्स द ए कॉस ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2. तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ. ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ हमने लिखा है इस एक्सप्रेशन के लिए. सो वी गॉट y इज इक्वल्स टू 2a cos 2 pi n1 minus n2 by 2 into t into sin of 2 pi n1 plus n2 by 2 into t. If you see the cosine part, 2a cos 2 pi n1 minus n2 by 2 into t, then that we are equating with a and defining it as resultant amplitude of the wave, then our expression becomes now what it will be, it will be y is equals to a sine 2 pi n1 plus n2 by 2. Okay, according to equation 1, the resultant motion is also again a simple harmonic motion having frequency average of n1 and n2 and amplitude capital A.
ओके। सो हमने देखिए बेटा यहाँ बोला कि मोशन कैसा है, फिर से सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो मैं आपको ये इससे पहले इसलिए नहीं बताया कि आपको पता होगा कि आपने 11th 12th में क्या पढ़ा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं। कोई भी मोशन अगर हम साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन से डिफाइन करते हैं तो वो हार्मोनिक मोशन होता है। अगर वो एक लाइन में है, सिंगल डायमेंशन में है, तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, राइट। सो साइन से हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसलिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ फिर से, राइट। लेकिन यहाँ हमें नोट करने जैसी बात ये है कि एक्सप्रेशन है जो ए का, यानी एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन है, राइट। कौन सा वाला एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन है, कौन सा वाला बेटा? हाँ, तो ये वाला कौन सा वाला एक्सप्रेशन? तो आप देख पाओगे कि एम्पलीट्यूड ए ये एक सिंपली अ नंबर नहीं है या कांस्टेंट नहीं है, तो उसमें कॉस फंक्शन है ना, यानी साइन कोसाइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है। इसका मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड इज़ नॉट कांस्टेंट। और हमें पता है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड और लाइट कुछ भी हो is always directly proportional to square of the amplitude, right? So you know or aware of that, okay. Then now after this we are going to see waxing and waning. See, condition for मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट इज़ वैक्सिंग। वैक्सिंग के लिए क्या कंडीशन होगी? तो आपको पता है, जैसे कि इससे पहले एक्सप्रेशन था हमारे पास अवेलेबल, ए इज इक्वल्स टू क्या बेटा? 2 टाइम्स स्मॉल ए इंटू कॉस ऑफ 2 पाई क्या ब्रैकेट n1 माइनस n2 बाय 2 इंटू टी, है ना। ये एक्सप्रेशन है। इसमें क्या चीज़, अगर ये कॉस वाला टर्म क्या ले, 1 ले, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब कितना? आइदर प्लस और -2, ठीक है। सो इसीलिए हमने यहाँ पे लिया मैक्सिमम के लिए कंडीशन ए इज इक्वल्स टू प्लस और -2। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड दैट, राइट। सो इसका मतलब क्या हो गया? 2a को छोड़कर जो कॉस वाला पार्ट था, ये वाला क्या हो गया? प्लस और -1, ओके। अगर वो प्लस और -1 है तो फिर क्या कॉस के कितने एंगल के लिए वैल्यू 1 या -1 के लिए? कॉस 0 के लिए +1 मिलता है, कॉस पाई के लिए -1 मिलता है, कॉस 2 पाई यानी 360 डिग्री के लिए +1 मिलता है, कॉस 3 पाई के लिए क्या मिलता है? -1 मिलता है। तो यहाँ पे ये एंगल्स के लिए इस कॉस की वैल्यू प्लस और -1 होगी। तो यहाँ हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 के साथ 2 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? पाई इंटू n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल्स टू के इंटू पाई। तो इसे हमने क्या किया? के पाई के फॉर्म में लिखा, राइट। के 0 है तो 0 मिलेगा, 1 है तो पाई मिलेगा, 2 है तो 2 पाई मिलेगा, राइट। सो यू गॉट अंडरस्टूड दैट, राइट। देन फिर ये जो एक्सप्रेशन है उसको हम मॉडिफाई करके लिखते हैं, तो t इज इक्वल्स टू
के पाई तो राइट साइड में ऑलरेडी है, या फिर पाई पाई कैंसिल करते हैं, पाई कैंसिल पाई के साथ, तो क्या बचा n1 माइनस n2, क्या बचा n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल्स टू क्या बचा बेटा Q, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, t इज इक्वल टू क्या k अपॉन n1 माइनस n2। तो हमें पता है k की वैल्यू 0 होगी तब ये मिलेगा, 1 होगी तब ये मिलेगा, 2 होगी तब ये मिलेगा, 3 होगी तब ये मिलेगा, सो ऑन कंटिन्यू होगा, राइट। सो देन तो हमें टी मिल गया, यहाँ पे वैक्सिंग होगी टाइम 0 पे मैक्सिमम साउंड, ये टाइम पे मैक्सिमम साउंड, ये टाइम पे मैक्सिमम साउंड, ये टाइम पे मैक्सिमम साउंड। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हमें कंडीशन मिल गई, राइट। या मैक्सिमम साउंड कब मिलता है ये हमें पता चल गया। देन नाउ टाइम इंटरवल क्या है, क्या सक्सेसिव मैक्सिमम के बीच में, तो देखिए डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट कितना आएगा, डिफरेंस इतना ही आएगा, थर्ड माइनस सेकेंड, देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन होगा, मतलब 2 माइनस 1 1, तो हम हर बार करेंगे ये दोनों लेंगे तो भी 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1, सो 1 अपॉन n1 माइनस n2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। सो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमास that is period is equals to 1 by n1 minus n2। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, कैपिटल टी का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल टी, तो पीरियड हमारे पास कैपिटल टी है, कैपिटल टी ऑलरेडी है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा n1 माइनस n2, क्या है फ्रीक्वेंसी है किसकी, बीट्स की, राइट। देन नाउ कंडीशन फॉर व्हाट मिनिमम इंटेंसिटी, सो एज यू नो और एज वी नो व्हाट इज इक्वल्स टू क्या है 2 स्मॉल a कॉस क्या बेटा n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू 2 पाई इंटू टी, है ना। तो फिर मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, a इक्वल टू 0 आएगा, 0 कब आएगा जब ये 0 आएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ना, तो कॉस की वैल्यू 0 आनी चाहिए, राइट। ये वैल्यू 0 कौन सा एंगल के लिए आएगी, यहाँ देखिए बेटा कॉस नहीं है, राइट। कौन सा एंगल के लिए आएगी, उसका जो एंगल 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी है वो क्या हो, पाई बाई 2 हो, 3 पाई बाई 2 हो, 5 पाई बाई 2 हो, इस कंडीशंस में आएगा। तो देखिए फिर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 के साथ कैंसिल, तो बचा क्या बेटा पाई n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल्स टू, इसे देखिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा कि पाई प्लस पाई बाय 2, देखो तो के की जगह 0 लिख दिया हमने, 0 प्लस पाई बाय 2 यानी पाई बाय 2 पहली कंडीशन, के की जगह हमने 1 लिख दिया, 1 यानी पाई प्लस पाई बाय 2 यानी कितना हो गया 3 पाई बाय 2, राइट। तो जैसे भी हम आगे की वैल्यूज लिखते जाएंगे हमें डिजायर्ड 3 पाई बाय 2 5 पाई 2 तो मिल जाएगा, राइट। सो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस पे से हमें क्या पता चलेगा, अभी देखिए यहाँ पे 2 जगह पे पाई है, पाई को कॉमन ले लो, कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा, तो क्या बचेगा बेटा t इज इक्वल्स टू
k by n1 minus n2 plus 1/2 times n1 minus n2, राइट। और अगर हम सारी वैल्यूज़ को लेते हैं, यानी k की वैल्यू 0 से लेते हैं, k 0 पुट कर दिया हमने तो ये बचा, k की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी तो ये मिला, k की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी तो ये मिला। ओके, देन हम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं? दो वेन्स के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 - 1 2, 2 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, कैंसल, तो बचा क्या? पीरियड इज इक्वल्स टू 1/n1 minus n2। तो आपको बता दूँ किसके लिए, वैक्स के लिए भी यही पीरियड मिला और वेन के लिए भी यही पीरियड मिला। और पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। तो आप चाहे वैक्स की फ्रीक्वेंसी लो या वेन की फ्रीक्वेंसी लो, सेम ही है। इसलिए बीट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आइदर वैक्स की या वेन की होती है, और वो क्या होती है बेटा? डिफरेंस के इक्वल होती है। जो दो साउंड्स हैं जो सुपरपोज हो रहे हैं उनके डिफरेंस के इक्वल, दैट बीट फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल्स टू n1 minus n2। और यहाँ पे हम कुछ एप्लीकेशंस को एनालाइज करते हैं। बीट्स आर यूज टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क है तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो अननोन है, ठीक है। बीट्स आर यूज टू ट्यून म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जो सितार, गिटार, वीणा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको ट्यून करने के लिए यूज़ होता है। बीट्स आर यूज टू डिटेक्ट हार्मफुल गैसेस इन द माइंस। माइंस में हार्मफुल गैसेस जो होते हैं लाइक मीथेन, उन्हें डिटेक्ट करने में भी यूज़ होता है। बीट्स आर यूज्ड इन हेटेरोडाइन मेथड ऑफ रेडियो रिसेप्शन। रेडियो रिसेप्शन, रडार सुना है ना आपने, जहाँ पे एरोप्लेन एंटर होता है, तो अपने रेंज में अगर एरोप्लेन एंटर हुआ तो वो रडार डिटेक्ट करता है, राइट। सो दैट रडार, यू नो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, दैट इज़ रडार। रडार में भी क्या फॉर्मेशन ऑफ बीट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ठीक है। सो इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर काइंडली लिसनिंग द class. Bye bye for now.